Namaskar, everyone. I'm Shuchita Chaturvedi, and I welcome you to this press conference hosted by the Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting. Before we proceed, let me remind you that this press conference is being live streamed on PIB Panaji's YouTube channel, and we request you all to switch off your mobile phones or keep it on silent mode. We have with us today from the Indian Panorama section the team of Marathi movie Humsafar. We have with us Abhijit Arvind Dalvi. He's a national award recipient and he's the director of this film. And also we have Pushkar Shripad Tamboli, who's the producer of the film. Uh, Who's I'm the who's the actor as well. yes. Yeah. And also we have National Award recipient Borun Thokchum, who's the director of the movie Battlefield, which is a Manipuri movie. Let's talk about Humsafar first. Then we'll have a brief trailer of the movie as well, so that you have a more idea about the film. So, Humsafar in Indian culture, a Humsafar companion can be more than a person. It can be a belief, a memory, or even an object that holds emotional value. This story captures the unique bond between a grandfather and his old radio, which for him is not just a device but a lifelong companion filled with memories and emotions. The narrative reflects how, in Indian tradition and culture, even ordinary objects become deeply personal and meaningful. When such a companion is lost, it creates a void, leading to a heartfelt search, not just for the object, but for the feelings and identity connected to it. Through this intimate journey, story of Humsafar celebrates the Indian culture and its emotional depth, reverence for memories, and the timeless belief that true companionship can be found in the simplest of things. When the heart remembers Humsafar, it's a story of attachment, loss, and the timeless essence of emotional connection in Indian life. I request the team to play the trailer of the movie. The click on the head we were talking about. The other movie, Battlefield, it is based on the Battle of Imphal, one of the World War II's bloodiest battles, ravaged Manipur in 1944, leaving deep scars on its people. Rajeshwar, driven by a lifelong fascination with the war's traumatic memories, embarks on extensive excavations to unearth material remains and human artifacts. Through his quest and the testimonies of living war witnesses, the film explores the psychological impact of mass violence and nationalism on local communities. It raises questions about the legacy of conflict and the impact of war and on everyday lives. The trailer, please. My name is Christopher Johnson. I live in Norfolk, England. My
interest with the Burma campaign of the Second World War is that my father fought there. We have reached at the highest point here. It's very thick with grasses. Those people who took their feast at this bungalow survived. None. At that time, I had no mother. After the death of my father, I became an orphan. So, Boran, this looks like an extensive research. How much time did it take to bring out such an extensive research-based project? Yeah, ma'am, it took almost 10 years to complete my film. My main character, Raisor, is here, and my two producers here. Yeah. Congratulations. And what kind of storytelling did it occur? Like, how did you find this story, and then how did you treat this story? Yeah, we grew up the listings of Second World War in Manipur. As you told it, the Battle of Imphal is considered to be the bloodiest battle in history of Second World War. But no media or there is hardly books written on this. So as a filmmaker, I thought it's my responsibility to tell the stories of our forefathers. So if someone is my contemporary, they will surely have a stories of, I mean, Manipur context, they will surely have the stories of Second World War. Every family has different stories. So we try to revisit and try to collect those stories, those myths, and those songs of war. And I want to tell the stories to the world. Yeah. So, when the jury was sitting here for a discussion, Yeah. they had categorically mentioned this film, Okay. and they had mentioned how there was a person who took efforts to bring artifacts and remains of the war to this to the into the domain to the public domain. So, Okay. did it happen? How did it impacted the story, and how did you treat it in the story? Yeah. So we heard about this Second World War, as I told you, Mm. but we never saw the real artifact or what you call those things, those bombs and all. But the things that some 15 years ago, so people like Rajesh Roy, they came out enthusiastically without the support of no one. They bought a metal detector and started searching the story. And everything that we heard as a story has come to life. That's how then I was quite intrigued. I was interested, and I followed this guy for 10 years, and there are so many story involved, and this one was mad. Yeah. Thank you so much. I'll move to the next team. आपकी स्टोरी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, रेडियो और दादाजी ही सारी कहानी कह जा रहे हैं। तो किस तरह से सोची ये कहानी, कहाँ से आया ये आइडिया? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो स्टोरी किसी राइटर या डायरेक्टर के पास होती है वो खुद के दिल से, खुद के एक्सपीरियंसेस से, खुद के मट्टी से आती है खुशबू। वैसे ही स्टोरी है। ये स्टोरी मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरे दादाजी जो गांव में रहते थे तो उनके पास 90s का टाइम है, तो ना उनके पास एक छोटा ट्रांजिस्टर हुआ करता था, एंड एवरी डे ही वॉज विथ वो ट्रांजिस्टर के साथ ही रहते थे। जब भी मैं छुट्टी को जाता था तो वो थोड़ा बहुत टाइम देते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो मैंने उनका वो ट्रांजिस्टर छुपाया। एक छोटी सी मेमोरी है मेरी, तो मैंने वो छुपा के रख दिया। तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो मेरे माँ को पता चला कि ये मैंने किया है, तो उसने थोड़ा बहुत मुझे पीटा और बाद में मैंने उनको वो ला के दिया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मैंने पहली बार देखा कि ग्रैंडफादर इतने हैप्पी है वो छोटे से ट्रांजिस्टर के साथ। उसको 10-20 साल चले गए, अभी घर में मुझे एक दिन वो ट्रांजिस्टर मिला और वो मेमोरी कनेक्ट हो गई। तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती है जो विदाउट डायलॉग बन सकती है। स्टोरी टेलिंग के लैंग्वेज में मैक्सिमम कन्वेंशनल डायलॉग्स रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं या फिर क्राइसिस रहते हैं। इवन यू हैव टू राइट सम सीन एक्शंस, बट ये कुछ ऐसी स्टोरी में बहुत दिन से ढूंढ रहा था जिसमें कोई डायलॉग ही ना हो। पुष्पक जैसे। और वो हमारी फिल्म की तो बड़ी इंस्पिरेशन रही है कि भारतीय सिनेमा के जनक आदरणीय दादा साहेब फाल्के जी, जिनका राजा हरिश्चंद्र है,
जैसे पुष्पक जैसा मास्टरपीस इंडिया में बना है, कितनी बार देखो, वो टाइमलेस है। आर्टिस्ट, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म है। तो ना ये फिल्म के बहुत एक बड़ा इम्प्रेशन मेरे मन में था, और ऐसा दिमाग में आता कि कभी ऐसी स्टोरी मिलेगी। ढूंढते ढूंढते मुझे पता नहीं था कि एक दिन घर मेरे में ही थी पास स्टोरी। वो मिलेगी मेरे पास। तो वो स्टोरी से ये मैंने ये ट्रैक डेवलप किया, और उसमें ऐसा समझा कि ये पूरे फिल्म में सिर्फ रेडियो बात करता है, बाकी ये पूरे कैरेक्टर्स है। यहाँ मौजूद है कॉस्ट्यूम डायरेक्टर बिलवा है, ही इज द कान्हा तिवारी, ही इज ऑल्सो गुड एक्टर, एंड पूजा कानड़े, ही इज अ प्रणीत मेड़े, एंड पुष्कर, ही इज अ गुड एक्टर। और यहाँ के किंग ऑफ माइम एक्टिंग जिन्हें कहा जाता है वो विजय पाटकर जी है, जिन्होंने इसमें लीड रोल किया, और ये सब साथ में मिलकर हमने ये फिल्म बनाई है। बिल्कुल। तो विजय जी के लिए जो आपने बताया, डायलॉग तो थे नहीं, बोलता कौन था? रेडियो बोलता था। तो उस रेडियो को क्या बोलना है वो भी आपने क्यूरेट किया था? हाँ, मैंने पहले जो स्क्रीन प्ले लिखा इसका, ये प्रोसेस स्क्रीन प्ले से ही पूरी अलग थी। कि यूजुअली मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस इस स्टोरी में रहा है कि यूजुअली हम स्क्रिप्ट पे डायरेक्शन या विजुअलाइजेशन अप्लाई करते हैं, अगर रिटर्न स्क्रिप्ट रही है तो। ये ऐसा था कि जिसमें विजुअलाइजेशन क्लियर थे, डायरेक्शन पॉइंट क्लियर थे, उसके ऊपर स्क्रिप्ट अप्लाई करनी थी। जो अपन ए टू जेड जाते तो अभी जेड टू ए आना था ये पूरे काम में इसमें। तो पहले हमने पूरे विजुअलाइजेशन जैसा दिख रहा है, जो स्टोरी मन में दिख रही है, तो मैंने स्क्रीन प्ले में लिखी, जिसमें विदाउट डायलॉग लिखी, जो ट्रीटमेंट क्या रहेगी, कैसे फ्रेमिंग। और ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि प्योर शॉर्ट टेकिंग और फिल्म मेकिंग के रूल्स में हम ये फिल्म बना सके, ये तो चैलेंज था। और जब मैंने विजय पाटकर जी को सुनाई, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 300 कुछ हिंदी फिल्म्स की है, 150 मराठी फिल्में की है, मैंने बहुत ऐड की है, लेकिन मैंने शॉर्ट फिल्म नहीं की है, अगर मुझे पसंद आया तो मैं काम करूंगा। वो सुनने के बाद वो कनेक्ट हो गए स्टोरी को, उन्होंने कहा मैं काम करता हूँ। हमें बहुत प्रेशर था कि इतने बड़े माइम एक्टर, उनके सामने वो इमीडिएटली एक्शंस रिएक्शंस फटाफट करते थे। यू ऑल आर द थिएटर आर्टिस्ट। सो हमने 8, 10, 15 दिन वर्कशॉप किए, और वो भी प्रिकॉशन लेके किए कि कुछ एक्सप्रेशन एंटिसिपेट ना हो जाए। उनका रॉ और जेन्युइन एक्सप्रेशंस मुझे निकालने थे, शॉट लेने थे उनके। तो वो थोड़ा काम रखते रखते हुए हमने किया, और बाद में जब साथ में आ गए तो ये बहुत अच्छी बन गई। पुष्कर बता रहे थे कि कैसे बाकी डायलॉग्स बोलने, बाकी फिल्मों में होता है डायलॉग्स होते हैं तो क्यूज मिल रहे होते हैं, यहाँ क्यूज ही नहीं थे। तो आप कैसे काम करते थे इस पर? एक्चुअली वर्कशॉप पहले किए गए थे। अभिजीत सर ने पहले हमारे पूरे टीम के वर्कशॉप लिया था, और उस वर्कशॉप में ये तय किया गया था कि रिएक्शन से क्यू कैसे लिए जाए, और वो रिएक्शन आने के बाद ही हम लोग अपना एक्शन या रिएक्शन देते थे। काफ़ी टफ था एज एन एक्टर, क्योंकि पूरी लाइफ ऐसे था ड्रामा में भी कि आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाएगा, वो आप पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे और आप रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिल्म के दौरान सिर्फ एक्सप्रेशन दे के ही आपको रिएक्ट करना है या एक्ट करना है, दोनों चीज़ें सिर्फ एक्सप्रेशन पे ही करनी है। ये काफ़ी टफ था, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ अभिजीत ये शायद अच्छा हुआ है। आप भी फिल्म देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। प्रणीत मेरे साथ था एग्जीक्यूशन के लिए, हम लोग दोनों एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है, तो एज एन एक्टर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डबल रोल प्ले कर रहा था, लेकिन प्रणीत एक साथ में था, इसलिए वो भी कर पाया। बिल्कुल। So the interesting thing is that both the movies deal with memories, grief, and there is a loss in one film. It is eventually met, like he finds the transistor, right? But there are certain losses which are uncounted. So with this, we'll make the floor open, and you can just ask your questions if you have. My question is for Barun sir. What is the most unique challenge that you have faced during the making of the film? Yeah, as the saying goes, documentary, the God is the director. I mean, God is the director, but for a fiction, director is a God. There's a difference. So I was going with the flow of the story as a document, because it can't be scripted. So yeah, the challenge is that, because this way I'm taking so long to complete the film, yeah. And also obviously finance part, because documentary we don't have a return, no, we never know where this is going to go. So I pitched to a different platform like Dockets. It's the biggest business platform there. So they like the story, but they want to tell the story from their side, from the British producer. They want this from the British angle.
and from the Japanese producer, they want from Japanese side. But as a filmmaker, like I felt that it's my story, you know, it's not for the money. So I was looking for a genuine producers, and luckily I have my friend Manjo here, my schoolmate friend, and it's his responsibility. So he was willing to produce a film, and also our Tamar Radhe here sitting, and in the post production part, no, he comes out, and we all together, you know, born a baby today. It's a world premiere. Yeah. Would the team like to share some experiences? Yeah. It's an honor for all the team and myself to be part of this 56th edition of International Film Festival of India in Goa. I think this is just the beginning. We have come this far. We have come this far, and it's the beginning. And I'm very thankful to the director Barun Thokchom. He has immortalized what we were doing since last 15-20 years, and this will be kept for the future generation. And I think this is the greatest achievement, and our contribution have been engraved in words of gold, I feel. So thank you once again to Barun and whole team of IFI. Thank you very much. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है कि बोलचाल की फिल्में तो बहुत बनती हैं और जल्दी हो भी जाती हैं, पर मूक फिल्म बनाना कितना कठिन होता है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्में का प्रमोशन क्यों नहीं होता? लोगों को पता नहीं चलता कि अच्छी डॉक्यूमेंट्री कैसे देखने को मिलेंगी. राइट. आपका एक सही क्वेश्चन है बड़ा, कि मूक फिल्में जो है, एक्चुअली मेरा पहले से यही मानना है कि ना स्टोरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूक फिल्मों के लिए. अगर ऐसी स्टोरीज बन सकी जो हम प्योरली विजुअल स्टोरी टेलिंग में बना सकते हैं, तो पहला काम बनता है. अगर वो स्टोरी करेक्ट नहीं मिली तो वो बन नहीं सकती. बहुत से बार आपको लगता है कि ये बात भी कर सकते हैं ना, क्यों जरूरत है ये सब ऐसा बनाने की. तो ये पहला चैलेंज था. दूसरा, वो अगर स्टोरी करेक्ट आपके पास आती है तो ना आपको वो क्राफ्ट करना है, विजुअल क्राफ्ट. जो किसी भी राइटर का एक चैलेंज रहेगा कि मुझे विजुअल क्राफ्ट इतना करेक्ट करना है कि जो पूरी स्टोरी टेलिंग विजुअल फॉर्मेट में जाएगी स्टार्ट टू एंड, जिसमें हर एलिमेंट आएगा, क्राइसिस आएंगे, क्लाइमैक्स आएगा, हर एक जो चीज़ ज़रूरी है वो आनी चाहिए. और तीसरी, इसमें परफॉर्मेंसेस इतने करेक्ट होने चाहिए जिसमें आपको परिभाषा जो फिल्म की लैंग्वेज है वो एक संध कनेक्टेड लगे कि हाँ ये डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए भी करेक्ट जा रही है. लेकिन ज़्यादा काम बढ़ता है इसके बाद जो बीजीएम है बैकग्राउंड म्यूजिक का, शॉट टेकिंग वाइज जो शॉट हम कंपोज कर रहे हैं उसका, और डीआई का, ये अगर करेक्ट होता है तो आप जो देख रहे हैं वो करेक्ट आप कन्वे कर सकते हैं. और मुझे आपको एक मैं कहना चाहूँगा कि ये फिल्म तो स्टार्ट में मुझे मेरे डीओपी को और बाद में एडिटर को ही ज़्यादा मालूम थी. मेरे एक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, ये लोग पूरा फेथ मुझ पे रखते हुए काम कर रहे थे कि हाँ ये ऐसा हुआ है, ये इनके पास ये मिला है, हाँ चलो और एक दो टेक करते हैं, ये आ गया है. तो वो पूरा काम एडिट टेबल पे ही बना लास्ट को जाके. और एक चीज़ है उसमें, जो रेडियो जो हमने दिया, ये 90s में जब रेडियो गए और वॉकमैन आ गए तभी का टाइम है. तो ना वो पूरा सेट डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, वैसे तरीके, लोगों के बिहेवियर, तब की जो चीज़ें थी वो हमें पूरे इम्प्लांट करनी थी स्टोरी में. तो वो एक अलग चैलेंज था, लेकिन उसमें मज़ा भी था. जो क्रिएशन में मज़ा है वो शायद और किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन वो करते करते बन गए. Monojoy, you were about Monojoy. Would you like to add something to what your team was saying? Hello. See, first of all, coming from Manipur, it's very difficult for us to create an identity for ourselves, even though I'm an Indian, right? So the first question they asked me today also in one of the VIP lounge, these are international delegates, right? Maybe my look have confused them, right? So when Varun first came to me with this idea, I don't know anything about movie production. I don't know anything about this cinema. One thing I really liked about him is the trust that I have. Because having known him from childhood, we are childhood friends. And, I've always admired the way he
the way he approached towards storytelling. It looks very genuine because he wants to tell a story which is from my motherland, from the place I was born. It's very interesting. And that's how he got national award, by following a character who's been fasting for 15 years just to say that ASPA, Indian Armed Forces Special Power Act, shouldn't be there in Manipur. That's when I realized that whatever he's going to do is going to be great for the society, great for the Northeast, and as a whole, great for the nation. Then he asked me, I asked him, Barun, what is the budget? He told me there is no budget. And he told me, I don't know when I'm going to complete this because it's not a fiction story. You cannot have a script. You cannot have an actor or actress, right? He is following Damo Rajeshwar through and throughout. And the entire story and the vision that he carried forward translate into a beautiful film because of the patience, the passion Borov has, right? Then I thought to myself, okay, we are not rewriting any history. We are revisiting the history that was happened 75, 76 years ago in Manipur and retelling it to the entire world and the generations to remember that this is one of the most dangerous, whatever name you can call, that it happened in Imphal and Kohima and it was forgotten. Then I thought, Varun, go ahead, do whatever you want. I'm there, right? And that's the trust between us. And this movie or this documentary can be broken down into multiple segments. One is the relationship that I share with my forefather, my grandfather, and it applies to all of you. Today, if you ask me, what's the name of your forefather, grandfather and grandfather, do you remember? Yeah, thank you so much for remembering. How did he die? What was his occupation? Yeah, very few people are privileged enough to remember this. But if you look at the two forces who fought in this war, the Imperial Japanese Army and the United Kingdom, their grandchildren want to understand how their forefathers have died. And through this film, we are spreading a message that, yes, high time is for us to record our family tree. We want to know how they died, how they happened. And through this movie, there is one connection in the relationship. Second message that we want to tell the story to the world is that war doesn't bring any good to any nation, any country, any individual. It only brings tragedy and tragedy. But through this movie, you can see that war ended long time ago, but the people of Manipur still today, we are facing this war. That's how, the story, the flow, it took so many years, but I was so patient. And I'm not looking at any ROI. Even my co-producer, yeah, please. Allow me to add my perspective to this. Documentation is something that we have gone in, but as filmmakers, I wouldn't call myself filmmaker, but I would say supporting documentation. We are from part of the world where the state of Manipur has given to the world the game of polo. Never mentioned any of the books in CBSE. We are also part of the 8 classical dances in India. The Manipuri dance is one of the classical dances. Luckily, in some of the CBSE books, we do find that. The Battle of Saraighat, fought in 1671, where the Fukan Thakur, he kind of pushed back the Aurangzeb army, is another history which is not mentioned in many of the history books. So when you talk about documentation and filmmaking, we see that from Manipur we have had Sir Shyam Sharma, Kans, but I'd also like to mention here
that in the state of Manipur, all the film documentation is very high. There are a lot of films which are made every year after year. But unlike Kerala, which is also where we have about 1,000 theaters, all the theaters have closed down in Manipur. And I think I take this platform to come across and tell you the story that 20 years back, the Bollywood Hindi films were banned in Manipur and still banned in Manipur, due to which the so-called viability of theaters did not work out and they got closed down. Therefore, the going to the movie theater totally died. There was no, the experience totally died. And today we have documentation of filmmakers struggling on their own to bring these stories, but no theater, as Barun also mentioned, when you make a movie, it's all about passion. And if you see the movie, The Battlefield, where they've worked for 10 years, Barun has shot, and whatever is shown here is just 1% of he has shot. That's the story of that. And we would like to, as my producer, my friend just also mentioned, about the family tree, how much in our society where we value society and human values here, somewhere what is lacking is many of our children, or many of our, even including ourselves, have not been taught to kind of, map our family tree, which has happened in this film, which will bring ancestral connectivity. In the midst of all this, I'm saying today, when you talk about Battlefield, today Manipur is in the crisis. I don't know how many people in this media hall is aware of it. For the last 2.5 years, 15 lakhs people staying within Manipur in the valley, the rights of movement, of leaving that valley to go through to another state or to another district have been all closed down. So there are a lot of crises happening, and we want to document. The battlefield still goes in Manipur. There are lots and lots that we can talk about. But definitely, we are very privileged. I'm very privileged to be part of this production where Barun and Rajeshwar, this is history, I think, being documented. And as mentioned earlier, Battlefield actually portrays one of the bloodiest battle in Second World War II, which nowhere has been mentioned in the books. And I believe that with this particular channel or with this particular product, our world will open up their eyes and look into that world, that small corner in the world, which is so much of history, portrayed and all hidden there. Thank you very much for giving me this time. And with this, I would like to mention that how such film festivals, like if we are bringing together such films of diverse subjects and domains. So I'll move to the cast and crew of Humsafar. अभी हम देखा आपने किस तरह से एक मेमोरी को कलेक्ट करने की, डॉक्यूमेंट करने की बात हो रही थी, और आपकी भी कहानी जो है अगर हम देखें तो वही आपकी एक मेमोरी थी जो डॉक्यूमेंट होते होते इस फिल्म तक पहुंची. तो इसके पहले भी आप इफ़ी में आ चुके हैं, आप लोगों ने पहले भी फिल्में अपनी यहाँ पे प्रदर्शित की हैं. तो किस तरह से मराठी सिनेमा, रीजनल सिनेमा इस डॉक्यूमेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई स्टोरी टेलिंग के लिए आ रहा है, आपको कैसा दिखता है? यस, डेफिनेटली. अभी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मराठी थिएटर का बड़ा इम्पैक्ट है मराठी सिनेमाओं पे, क्योंकि मराठी थिएटर की मूवमेंट बहुत बड़ी है. जैसे कि अच्छे अच्छे राइटर और डायरेक्टर, जैसे तेंदुलकर साहब थे, मॉडर्न प्ले राइटर भी हुए आड़ेकर जी. तो थिएटर से यहाँ फिल्मों का अच्छा जन्म हुआ है, ऐसा मेरा कहना है. जितनी अच्छी फिल्में बने वो सब थिएटर डायरेक्टर ने वो जैसे फिल्म मेकिंग का जो पूरा साइंस है वो अडॉप्ट करने के बाद अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है. अभी जो भी फिल्में आ रही है वो ऑडियंस बहुत इंटेलेक्चुअल है. मराठी रीजनल ऑडियंस वो ना झूठ नहीं देख सकती, या फिर उन्हें कोई फूल नहीं बना सकता कि हाँ ये देखो ऐसा ऐसा है और आप बन जाओगे. जो एंटरटेनमेंट भी रहेगा उसमें अगर कोई इमोशनल धागा रहेगा, रियलिटी रहेगी और उसके साथ अगर जाएगा तो वो मराठी फिल्म चलती है, लोग देखते हैं. और जैसे कि सुमित्रा भावे जी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत नेशनल अवार्ड लिए भी है और बहुत अच्छी अच्छी कासव जैसी फिल्म बनाई, जैसे स्वर्ण कमल मिला. तो ना ये अच्छे अच्छे कंटेंट मराठी में लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं. जब नए फिल्म मेकर्स हमारे जैसे भी आ रहे हैं जो लिख रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो ना ये बहुत हमारे सामने एक उनका बड़ा आदर्श है कि हम कुछ अच्छा लिखे, कुछ अच्छा बनाए, और वो बनाए जो रियलिटी हो, जो लोगों के दिल तक पहुंचे, या फिर कुछ अच्छा मैसेज उनके पास जाए कि यस वो मेमोरी रही या फिर वो फेथ रहेगा, वो बिलीफ रहेगा, या फिर कोई लेसन रहेगा. वो अभी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाती है वो करते समय. तो जो आपको नेशनल अवार्ड मिला था वो एक बेस्ट फिल्म फॉर फैमिली वैल्यूज मिला था. राइट. तो उस समय आपने फैमिली के बीच में जो इमोशंस है उनको उकेरा था. इस बार कैसे निर्णय लिया कि नहीं अब जो है फैमिली को साइड में रख के रेडियो से इमोशंस निकालेंगे? वो
एक ऐसा है कि आपके इसमें भी कहा कि जो ना बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ये नेशनल अवार्ड का फॉर्मूला क्या है। ये कोई नहीं पूछता कि तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या निर्देशित किया है, तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम्हें क्या कहा तुमने ये फिल्म में, कोई नहीं पूछता। बजट क्या है या फिर क्या फॉर्मूला क्या है और कैटेगरीज कितनी रहती है मालूम है क्या, कुछ यही लोग क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नेशनल अवार्ड मिलने का एक ही फॉर्मूला है कि नो फॉर्मूला। और ना आपको जो दिल से आता है ना अंदर से, वो ना कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा। मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मैंने बहुत ड्रामा काम किया है। मेरी बहुत इच्छा थी मैं कभी FTI जाऊँ या कोई फिल्म मेकिंग का कोर्स करूँ। मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी कि मैं नहीं कर सका ये, लेकिन इफ्फी जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आके हम सीखते हैं, देखते हैं। ऐसे डायरेक्टर को जैसे अभी वरुण जी है, उन्होंने इतने साल लगा के एक फिल्म बनाई और ये लोग सामने बैठे हैं। मैं यहाँ बैठ के इंस्पायर हूँ उन लोगों को मिलके। कहाँ मिलेगा ये? बिल्कुल, आइडिया भी यही होता है कि इस तरह से अलग अलग फिल्मों को हम साथ में लेकर आए एग्जैक्टली और वो परिचर्चा आगे और बढ़े। ये जहाँ बनेगा वहाँ विद्यापीठ बन गया, वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई, वहां से हम सीखने लगे। और यहीं से सीखते सीखते हम लोग जब बनाते हैं, तो मेरा यही कहना है कि जो चीजें ना वो अंदर से आती है। वो बहुत अच्छा थॉट अभी इन्होंने कहा कि लोगों को मालूम नहीं है कि उनके ग्रैंडफादर फोरफादर क्यों लड़ते गए, क्या किया उन लोगों ने। जैसे मैंने वो नेशनल अवार्ड के लिए जो जिसे नेशनल अवार्ड मिला, कुंकू मार्चन करके स्टोरी थी, वो एक सच्चे लड़के की स्टोरी थी। वो डीफ डम था और ना वो पैसे जमा करता था और उसने माँ के लिए चप्पल ली ना खुद के लिए ली। और माँ का एक ही थॉट था कि मैं मेरे लड़के को सिखाऊं जाने के ये बड़ा बने, कुछ काम करे, वो मेरा जैसा काम ना करे। वो मजदूरी करती थी और वो माँ नहीं आ सकती, तो उसने उसके स्केच बनाया जो खून निकलता था पाव से काम करते करते। तो रात को उसने प्रिंट ले ली पाव पे और वो दिखाया और बोला कि ये मेजरमेंट का चप्पल चाहिए मुझे। ये ट्रू स्टोरी है। और फिर वो चप्पल लेके घर जाता है। तो ना महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ जो स्वराज्य का निर्माण हुआ, तो एक माँ बेटे के साथ खड़ी हुई और उसने स्वराज्य निर्माण किया। जहां माँ खड़ी होती, जैसे आपने कहा फोर फादर जो लीगेसी है उनके पास, वो माँ खड़ी होती और उसने कहा कि, तो फिर हमेशा यही कहा जाता है कि स्वराज्य का जो रियल संसार था वो राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था। उन्होंने ही बनाया वो स्वराज्य जिसमें हम हैं आज। वो मॉरल्स जो आज हम जी रहे की अशीच आमची आई सुंदर असती तर आम्हीही सुंदर झालो असतो बदले छत्रपति। हर स्त्री को आप माँ के हिसाब से देखो, उसके सौंदर्य को। ये सब मॉरल तो वहां से आए। यही हमारा काम है कि अच्छे मॉरल्स, कुछ अच्छा गैजेट अगले जनरेशन को देके जाए कि वो समझे कि क्या था तब, क्या बना है इन लोगों ने। तो वो चीजें इस स्टोरी में मुझे मिली और हमने वो चीज बना दी और वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। ये अभी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल वो बन गया। अभी रेडियो की भी स्टोरी ऐसी कि जो दिल से छू गई, आपके मन में उतर गई, तो आप बनाओ। और एक मैं 100% यहाँ कहना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त हैं उनको भी कहता हूँ, जो इमोशन से राइटर लिखता है, जो इमोशन से डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, वो इमोशन आपके स्टोरी में उतरती है और वो एनर्जी लोगों के पास जाती है और इंस्पायर करती है लोगों को, जनरेशन को। बिल्कुल, और इसीलिए ये डॉक्यूमेंट करने के लिए ही फिल्में ऐसा जरिया हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। पुष्कर जी, मैं ट्रेलर पर एक सवाल था मेरा। एक सीन था जिसमें वो ठक से मारते हैं और रेडियो की आवाज चल, वो अगर उसके ऊपर बता सकें जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली इस पे मुझसे ज्यादा अभिजीत ज्यादा बात कर सकेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पे बोल देता हूँ कि जब फिल्म चल रही थी, स्टोरी नरेशन चल रहा था और अभिजीत हम लोगों को स्टोरी सुना रहा था। शूटिंग के दौरान अभिजीत ने आके हमसे कहा कि एक चीज इस फिल्म में चलती रहेगी, जो है रेडियो का आवाज। और हम बचपन में देखते थे कि हमारे दादाजी या पिताजी, वो रेडियो रहता था पुराना ट्रांजिस्टर, उसको ऐसे थप मार के वो चल जाता था इमीडिएटली या रेंज पकड़ लेता था। तो वो चीज का एक रिजेम्बलेंस हर एक के लाइफ में, और उसका एक्चुअल फिल्म में भी एक रेफरेंस बहुत ज्यादा दिया गया है कि प्रणीत का जो रेडियो है, वो रेडियो देखने वो दादाजी जाते हैं और वहां पे प्रणीत जब उस रेडियो पे मारता है तो हम लोगों को रियलाइज होता है, हमने वो चीज बाहर से देखी है, हम लोगों को रियलाइज होता है कि हम लोगों ने क्या गलती कर दी। उन दादाजी से वो रेडियो चुरा के हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमने अपने पापा के इमोशन से खेला है और इसलिए हम लोग वापस जाते हैं वो रेडियो ढूंढने के लिए। तो वो चीज का इम्पैक्ट आने के लिए डायरेक्टर सर ने वो चीज प्लेस किया था। मैं उनसे बात पूछूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चीज पे कुछ बोलिए। ये थप्पी जो बोलते हैं,
वो अगर थप्पी आप लगाओ तो ढोल बजता है, माँ जब थप्पी लगाती है तो समझ में आता है ये गलत कर रहे ये हो। स्टोरी भी तो आपको थप्पी पढ़ने से ही पड़ी। तो अरे क्या बात है, एकदम करेक्ट कहा आपने। तो हर चीज चल जाती है इंडिया में, थप्पी लगा दे तो आप। ये प्यार की थप्पी के, नॉट अ वायलेंस, हाँ मैं प्यार की थप्पी से बात कर रहा हूँ। तो ये ना पूरे फिल्म में ना थप्पी का अलग अलग मीनिंग है शॉर्ट वाइज। जब वो दादाजी मारते हैं तो रेडियो उनके साथ चलता है। जब इन लोगों को समझ में आता है कि हमारे वजह से रेडियो चला गया, तो एक अलग जगह पे वे रेडियो देख रहे हैं और वो थप्पी मारते, तो उन्हें लग रहा है कि अरे ये मुझे बैठ रहा है, कि अरे हमने गलती कर दी। तो ये थप्पी थप्पी का मीनिंग है। और जब लास्ट की थप्पी बड़े प्यार से वो देते हैं, जब रेडियो फिर से आता है घर में जहाँ फिल्म खत्म होती है, तो वो हमने उसमें ये किया था कि जब रेडियो जाने के बाद उनके दिमाग में रेडियो चल रहा है, इसलिए जब भी वो रेडियो चल रहा है और उनको समझ में आता है कि मैं रेडियो की आवाज नहीं सुन रहा हूँ, ये मेरे मन में चल रहा है, तो जब वो मारते तो रेडियो की आवाज बन जाती है। और ऐसे पूरे फिल्म में होता है। एक जगह वो बंद नहीं होती, तब समझ में आता है कि अरे सही में रेडियो मेरे घर में आ चुका है। बिल्कुल। आप सबके कोई और सवाल? जी सर, मैं प्रशांत गुड से लेट्स अप मराठी मुंबई से हूँ। मेरा कहना ये है कि झप्पी उसके बाद थप्पी, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपकी थप्पी चल गई। वो थप्पी का यानी कि रिजल्ट ये मिला कि आपका इंडियन पैनोरामा में आपका फिल्म स्क्रीनिंग हो गया। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया, जो विजय पाटकर जी है वो देखे गए तो कॉमेडी एक्शन, कॉमेडी सीरियल, कॉमेडी शोज, कॉमेडी फिल्म में उन्होंने काम किया है, उनका चेहरा आपके फिल्म में परफेक्ट बैठता है, ये आपके दिमाग में कब आया? स्क्रिप्ट लिखते टाइम था या उसके बाद आपके दिमाग में आया? मैं ना, मेरी पूरी जनरेशन, ये लोग यहाँ बैठे, वो हम जब स्कूल में जाते थे तभी से तेजाब फिल्म के टाइम से हमने उन्हें देखा है, और हम देखते ही बड़े हुए हैं। ऐसे बहुत बड़े एक्टर है वो, हमारे लिए जनरेशन वो इंस्पायर करने वाले। तो मैंने उनका माइम शो बहुत देखे थे। तो उनका एक बार मैंने माइम शो देखा था कि ना वो बाल ऐसे निकालते और आपको बाल दिखता है जो हाथ में नहीं है उनके, फिर वो यहाँ टच करते, मान हिलाते, आंखों में जाता है। वो पूरा काम मैंने उनका देखा था और तभी से मुझे मालूम था कि उनके पास ये विद्या है, ये कला है, और थिएटर में उन्होंने ऐसा काम किया जो चीज ना रही तो भी वो माइम में दिखा सकते कि ये चीज है। वो चाहे बारिश हो या फिर कोई बाल हो या बड़ी बड़ी चीजें हो, छाता हो, बहुत बड़ा फ्लड आ चुका है, वो सब एस्टेब्लिश करते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से। और बहुत कम एक्टर है जिनको स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म में भी दिखाया गया। एग्जैक्टली। तो मैंने, हाँ वही, तो मैंने वो देखा था। और जब ये स्टोरी बन गई तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये ही कर सकते हैं वो जिनके पास वो एक्सप्रेशन है। शायद मैं ये भी बोलता हूँ हमेशा कि अगर वो ना बोलते स्टोरी को तो मैं वो नहीं बनाता। अगर पूरा न्याय वो दे सकते थे, इसलिए उनके साथ हम बना सके और किया। अगर वो ना बोलते तो शायद कोई दूसरी फिल्म बनाते, हम ये नहीं बनाते। उनके लिए खास स्क्रिप्ट बनी है। डेफिनेटली। एज एन आर्टिस्ट भी हम लोग जब उनके साथ काम कर रहे थे तो हमारे लिए वो एक यूनिवर्सिटी थी कि कैसे रिएक्शन दिए जाते, कैसे जो फिलिंग द गैप्स जो होते उनको कैसे फिलअप करते, क्या रिएक्शन देके आप लोग कौन सा मीनिंग निकाल सकते, ये चीज हम लोग को काफी सीखने को मिली उनसे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतनी सारी चीजें उन्होंने हमें सिखा दी कि हम लोग जब आगे फिल्म करेंगे तो या कोई भी परफॉर्म एक्ट करेंगे तो उस चीज में हम लोग काफी एनरिच हो चुके होंगे उनकी वजह से। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोगों को उनके साथ काम करने को मिला है। बिल्कुल। आज दादाजी भी हमारे पास इस पैनल में होते तो और मजा आता, उनके right. भी परिप्रेक्ष्य जानने को मिलते। मुझे एक बार वो जो सवाल था मेरा अभी भी वही है कि जो रेडियो चलता था तो सुबह से लेके शाम तक उस पर क्या बजेगा, वो तो सुबह से शाम तक सुन रहे हैं, वो आपने कैसे डिसाइड किया कि सुबह आकाशवाणी सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, वो कैसे क्यूरेट किया आप लोगों ने? मेरी वाइफ है बिलवा, वो आकाशवाणी के युवा वाणी में काम करती है, तो वो बहुत शो करती है उसके, तो उसका काम मेरे काम के साथ चलता है, तो मुझे आधा आप तो बताना पता चाहेंगे कि कैसे क्यूरेट किया था? वो तो डायरेक्टर साहब ही बताएंगे क्योंकि मैंने सिर्फ उनको हेल्प की है, बस जस्ट देयर विद हिम, सो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो मेरे सामने एक मालूम था मुझे कि ऐसा काम चल रहा है दिन भर, तो ना वो जैसे रेडियो की जो एक ट्यून है वो कहीं भी आप सुनो वो आदमी को समझ में आएगा कि हाँ ये रेडियो है, ये रेडियो की ट्यून चल रही है। तो हमने सिमिलर एक ट्यून क्रिएट की जो ना वो कॉपीराइटेड रहेगी, लेकिन वो ट्यून कोई भी सुनेगा तो ये शॉर्ट फिल्म के में रेडियो को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाई है, जो पूरे रेडियो सुनने वाले जितने पुराने लोग हैं उनको कनेक्ट होगी। जैसे कि एक एक सेगमेंट रहता है कि वो जो बोलते कि जो एकदम पहला प्रहर है, दूसरा प्रहर, तब वो गाने जो रहते हैं, फिर बाद में संगीत चेंज होता है,
फिर योगा के बारे में कोई टीचर आके बोलता है, युवा वाणी की, वो पूरे सेगमेंट हमने देखे थे कि दिन भर ये लोग कैसे एंगेज रहते हैं, क्या क्या सुनते हैं, फिर कौन सी न्यूज कब आती है, और रात तक ये रेडियो कहाँ तक क्या क्या देता है, तो पूरा सुन के उसके ऊपर हमने काम किया। फिर लाइव सिंगर बुलाए, जो किशोर दा की जो आवाज थी वो तब लोगों को बहुत पसंद थी, और तभी वो गाने भी सुनते थे कि जो येडलिंग था उनका, वो ला ला वो, तो फिर हमने वो गायक बुलाए, उनसे वो उस तरीके से गवाया, और ऐसे करते करते वो पूरा एक लाइन तैयार किया फिल्म का, जो स्टोरी में जरूरी था और जो उनके पूरा दिन और रात उसके साथ कनेक्टेड रहता है, और वो बनाने के बाद वहाँ प्लेस किया और वो परफॉर्मेंस में हमने यूज किया। Beautiful. Barun, to conclude, I would like you to have to share an experience about the screening at IFFI. How did the screening go? What was the reaction of the audience? Yeah, it was good because for documentary we don't have a very for India we don't have a very proper platform to screen our documentary. So it's a wonderful that the platform like IFFI has given my space for world premiere. So we're very happy. Great. Thank you so much. With this, we'll conclude this conference, and we have a small token of memento for you. So please come forward. Thank you.